Okay, welcome dear students. This is your Pinaki sir, Faculty of Biological Science and Environmental Science. So we are going to discuss today the human circulatory system. So our objective is composition of circulatory system, and after that we will discuss the normal introduction of human heart, and thereafter we will see the outer layers of one human heart, and thereafter we will know that the various kinds of chambers of heart, and at last we will discuss the different types of valves present into human heart and their specific functions. Okay, so let's move on. So सबसे पहले ये हम जानेंगे कि this human circulatory system, we also call them blood vascular system, right? So our major body fluid is blood, and obviously along with this blood, this carries various kinds of nutrients and hormones, oxygen, carbon dioxide, right? So oxygen filled blood is called the pure blood, the oxygenated blood, and on the contrary, we call the carbon dioxide filled blood as the impure one, right? The deoxygenated or carbonated blood. Okay, so we need to uh, purify that deoxygenated kind of blood, and we can say that by the help of lungs and our kidney, we can easily purify our blood, right? So our this blood vascular system or human circulatory system is generally consisted of one human heart and the major body fluid blood, and the pathway through which the blood is generally transported, which is called the blood vessel. ये blood vessel हम देखेंगे कि blood इसके थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, and उसके साथ क्या होता है कि ये ब्लड वेसल के अंदर जाने के समय ब्लड के साथ साथ हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So our human heart, all of us know that in case of sexual reproduction, uh, the formation of zygote, right? The two gametic cells are comprised together to form one zygote, and these zygotic cells, there we all see around that zygotic cells the triploblastic layer, right? So जब भी ये just a minute, जब भी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर फॉर्म करेगा तब हम देखेंगे कि ये अगर जाइगोट हो जाए, राइट, ऑब्वियसली ये 2n और डिप्लॉयड टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेल होगा, एक यूनिसेलुलर जाइगोट, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फिल्ड होगा, एंड जो फीमेल गैमेट होता है वो भी हैप्लॉइड टाइप होगा, एंड दोनों के एक साथ होने से हम देखेंगे कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर होते हैं. तो ये जाइगोट एक यूनिसेलुलर सेल होगा, एक ही सेल, उसके बाद एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से ये मल्टीपल करता रहेगा और एक अल्टीमेटली सेल मास में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो अराउंड दिस जाइगोटिक सेल हम देखेंगे वी विल सी वन trilayer which is called triploblastic layer. Okay, the outermost layer is called ectoderm, the middle part or middle layer is called mesoderm, okay, and the innermost part is called endoderm. Endo matlab andar, right? So the triploblastic layer is formed, and from this triploblastic layer the various kinds of body parts are generally produced or created, right? So our main concern today is our heart, and its origin is the mesoderm layer, okay, from which they are usually created. Okay, so from the mesoderm layer our human heart is generally produced. After that, if we
see their exact location, we will see that at the thoracic cavity is the specific location for human heart, and between two lungs, uh, our heart is just tilted towards the left lung, left side, and we can see that the total shape of heart of us is generally as a size of the clenched fist. Okay, so ये एक मुट्ठी भर के तरह दिखने लगेगा. Okay, our heart, they are like just a clenched fist. So now we will see the double wall membrane bag into which the human heart is located, which is called the pericardium. Okay, so ये हमको याद रखना पड़ेगा. ये पेरिकार्डियम जो है, ये पेरिकार्डियम लेयर हम बोल सकते हैं कि इस बैग के अंदर और जो ह्यूमन हार्ट है वो प्रेजेंट रहता है, राइट. सो ये पेरिकार्डियम जो लेयर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि एक ये फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये भी हमको याद रखना पड़ेगा. ओके ओके, तो जनरली इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन हम देखेंगे कि इसका फंक्शन होगा कि दे यूजुअली प्रोटेक्ट द हार्ट. ये तो हम कह सकते हैं कि ये एक बायोमेकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हार्ट को, कि एक्सटर्नल जो भी शॉक आता है ये एक्चुअली वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये दे एक्चुअली एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. ओके, सो दे जनरली प्रोवाइड्स सिग्नल फॉर एम्ब्रायोजेनिक हार्ट फॉर्मेशन. जब ये होगा तो हम देखेंगे इसका मैचुरेशन के टाइम ये क्या कर रहा है कि सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो ये हमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, इसका जो लोकेशन है वो क्या है. ओके, और इसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, राइट. तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि हार्ट्स इंजुरी रेस्पॉन्स एंड रीजेनरेशन में ये हेल्प करता है. ओके, सो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट ये है. और एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, इसको हम अगर स्पेसिफिकली कहते हैं तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कह सकते हैं. ओके, इसके बाद हम देखेंगे there are actually 4 chambers into our heart. The upper 2 chamber is called right atrium and left atrium. Okay, and the lower 2 chamber होते हैं उसको हम कहते हैं कि left ventricle and right ventricle, right. तो ये 4 चेम्बर प्रेजेंट रहता है एक हार्ट के अंदर. तो इसके बाद हम देखेंगे कि ऊपर के तरफ जो ये 2 स्मॉल अपर एट्रिया प्रेजेंट रहता है उसके अंदर क्या रहेगा, एक थीन इंटर एट्रियल सेप्टम रहेगा, विच एक्चुअली डिवाइड्स द टू लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. ओके, और इसको हम ऑरिकल भी कह सकते हैं. तो एक इसी तरह हम देखेंगे कि नीचे की तरफ क्या होता है, एक थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट रहता है, विच एक्चुअली फंक्शंस एज द डिवाइडर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑरिकल जो है और वेंट्रिकल जो है इसके बीच में एक सेप्टम रहता है, जिससे क्या रहेगा कि ये ऑरिकल और जो वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है ये 2 चेम्बर अलग अलग तरह से प्रेजेंट रहेगा. ओके, पर फिर भी इसके अंदर हम देखेंगे ये सेप्टम के अंदर थोड़ा बहुत पोरस स्ट्रक्चर होता है और ओपनिंग कहना बेटर होगा, ओपनिंग प्रेजेंट रहता है जिसको हम हार्ट वाल्व्स कहते हैं. देखिए, तो ये हार्ट वाल्व्स एक्चुअली एक यूनिडायरेक्शनल वे में खुल जाने वाला एक डोर होता है, दरवाजे होता है. इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. उसके पहले हम जो देखेंगे कि ये जो वेंट्रिकुलर वॉल होता है ये थोड़ा थिक नेचर का होगा. ओके, सो और एक बात हमको ये याद रखना पड़ेगा, whenever we will study the total blood circulation through heart, we will see that from the atrial chambers the blood is generally transported towards the ventricular chambers, and as the ventricles they pump out the whole blood towards the body, that is why their wall is thicker than any other
chambers wall. Okay, so move on to the next slide. ये तो हम पहले कह रहे थे कि दो चेम्बर्स के बीच में अगर एक ओपनिंग प्रेजेंट रहता है जिससे द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द previous one chamber towards the next chamber, which is called, the openings are generally called various kinds of heart valves. Okay, so these heart valves, they act like unidirectional doors. ये एक तरफ खुलने वाला दरवाजे की तरह होता है, जिसके हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. अगर हम ये देखते हैं कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ओके, इसके बीच में एक ओपनिंग रहता है, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व. कास्प शिफ्ट होता है ये वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और एक दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व. ओके, तो ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है, प्रेजेंट रहता है, एक ओपनिंग के तरह. जैसे कि होल बॉडी से अगर इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आते हैं, टुवर्ड्स दिस, हम देखेंगे कि राइट एट्रियम के अंदर चले आते हैं. ओके, थ्रू द सुपीरियर वेना केवा हम देखेंगे कि जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो थ्रू सुपीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर वन होते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं, वो राइट एट्रियम के अंदर आएंगे. और थ्रू इंफीरियर वेना केवा हम देखेंगे कि बॉडी का जो लोअर पार्ट होते हैं वो टुवर्ड्स ये राइट एट्रियम के अंदर आएगा. ओके, उसके बाद देयर आफ्टर द व्हेनेवर दिस राइट एट्रियल चेंबर they collapse or they contract, they try to contract, उसके कंट्रक्शनल जो फेज है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक कंडीशन. तो ये राइट एट्रियम वाला चेंबर जब भी ये सिस्टोलिक कंडीशन में चला आएगा, कंट्रैक्ट करेगा, तब क्या होगा, इसके अंदर रहने वाला जो ब्लड है वो पंप आउट होकर चले आएगा नीचे वाला चेंबर पे. वो कहाँ ना, राइट वेंट्रिकल. ये राइट वेंट्रिकल के आने के लिए कौन सा ओपनिंग, कौन सा दरवाजा खुल जाएगा ना, बाइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व. ओके, ये क्लियर हो गया. एक ही तरह हम देखेंगे कि जब ये हार्ट से आफ्टर गोइंग फ्रॉम ये राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होगा ना, एक पार्ट है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, वो पार्ट के थ्रू चला जाएगा कहाँ पर ना, लंग्स के तरफ. ओके, चला जाएगा लंग्स के तरफ. ओके, तो हम देखेंगे लंग्स के तरफ चले जाने से क्या होगा. लंग्स क्या काम करता है, द लंग्स एक्चुअली द फंक्शन टू प्यूरिफाई द ब्लड. ओके, वो क्या करेगा ना, यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज करेगा. राइट, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इम्प्योर ब्लड के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके एक्सचेंज में फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ओके, तो ये गैशियस एक्सचेंज से हम देखेंगे द ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू प्यूरिफाइड वन. सो इसके बाद हम जो देखेंगे कि ये प्यूरिफाइड जो ब्लड है ये कहाँ पर आएगा, ये हम देखेंगे कि लंग्स से होकर ये चला आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर. ओके, सो व्हेनेवर द ब्लड comes from the lungs, the purified one blood comes from the lungs towards the left atrium. Thereafter, from the left atrium, the blood goes towards the left ventricle. And left ventricle के तरफ जाने के लिए उसका भी एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा. यहाँ पर एक कास्प शेप्ड हार्ट वाल्व प्रेजेंट रहता है, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. This tricuspid valve is present between the right atrium and right ventricle. Okay, so this is the opening between, which is situated between the right atrium and right ventricle. And जब भी ये impure blood exchange, after exchange of the impure one and being हम कहते हैं जो purified जो blood है वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा. उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर ओपनिंग से ये कहाँ पर चला आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर के जाने के बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पर जाता है ना, थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी, इसको हम कहते हैं एओर्टा. ये हमको याद रखना पड़ेगा, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा हम कहते हैं. ये चला जाता है थ्रू एओर्टा टुवर्ड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स. ये टिश्यू में जाकर उधर पे हम देखेंगे कि वो प्योर ब्लड का यूटिलाइजेशन होगा. ओके, तो इसके बाद और दो वाल्व्स के बारे में हमको जानना है, वो क्या है, एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व से. ओके, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स के बारे में हमको जानना है वो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल के बाद हम देखेंगे
क्या होता है कि यहाँ पर और एक ओपनिंग है, और एक ये देखने के हम देखेंगे कि ये देखने में थोड़ा सेमिल्यूनर शेप है, राइट, सेमिल्यूनर शेप है। तो इसको हम कहेंगे कहेंगे कि इसके बाद क्या आता है, लंग्स आता है। तो लंग्स के अबाउट लंग्स अगर जो कुछ भी होता है उसको हम पल्मोनरी कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, पल्मोनरी। सो इस ये लंग्स के पहले प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये सेमिल्यूनर वाल्व को हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वाल्व। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ओके, तो ये ओपनिंग से ये चला जाएगा लंग्स के तरफ। अब लंग्स से होकर हम देखेंगे कहाँ पर आते हैं ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से हम देखेंगे एक ओपनिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द वेरियस काइंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, राइट। तो ये प्योर ब्लड हम देखेंगे कि एओर्टा से होकर जा रहा है। ओके, एओर्टा से होकर जा रहा है। ओके, तो ये एओर्टा से पहले वाला प्रेजेंट रहने वाला ये जो ओपनिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ओके, तो ये चार ओपनिंग और हार्ट वाल्व के बारे में, लोकेशन के बारे में हम जान गए। और हर एक हार्ट वाल्व का एक ही फंक्शन होता है, they actually open unidirectionally and they help in the transportation of blood unidirectionally। वो प्रीवियस चेंबर से नेक्स्ट चेंबर के तरफ उसको जाने में हेल्प करता है, राइट। यही एक फंक्शन है हर एक हार्ट वाल्व का। ओके, अगर हार्ट वाल्व डिसफंक्शनल हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो हम कहेंगे एक साउंड क्रिएट होता है विच इज यूजुअली हर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, राइट। उसको हम कहते हैं हार्ट मर्मरिंग, ठीक है। ये एक डिजीज है, इससे क्वेश्चन आता है, PYQ आता है, तो इसको हमको याद में रखना है कि ये जो हार्ट वाल्व होता है, ये अगर डिस्फंक्शनल हो जाता है तो इसका डिस्टर्बेंस को, फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं मर्मरिंग ऑफ हार्ट। ओके, तो दिस इज ऑल। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोडल टिश्यूज ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।